Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel. In this one PYQ, a day series where we discuss and analyze one previous year question of mains UPSC Civil Service Examination. Today is the day of society, and that is why I am here and about to discuss one previous year question, and that is year 2024 mains GS paper 1 question of Indian society for you. And before I start the class, obviously I'll talk about the one-to-one mentorship that we are offering at Shriram IAS, which is a very crucial step in your holistic preparation. To navigate the uncertainties of UPSC, you need somebody who's dedicatedly looking after your concerns, your interest in a very objective and compassionate manner. And that is why ये जो वन टू वन मेंटोरशिप है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है. और सबसे बड़ी बात, it is easily accessible. Just look at the description of the video, fill the form, completely free of cost. Okay, so we will start with looking into the question that they have asked. The question was critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. Comment 15 marker 250 words question it was. So last year it in a way it perplexed many of the aspirants, even serious aspirants who were writing the mains GS paper 1 कि भाई इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट कोर क्या है, what exactly they are asking. So I found many of the aspirants also got confused कि पूछ क्या रहे हैं exactly. So the first thumb rule of the mains is that you read the question carefully. You should understand the demand of the question. फिर से पढ़ते हैं. Critically analyze the proposition. This is a proposition. Some people say कि इंडिया में जो इंडिया की कल्चरल जो डाइवर्सिटी है और इकोनॉमिक जो मार्जिनलिटीज हैं इनके बीच में एक हाई कोरिलेशन है. ये एक प्रिपोजिशन है जो ये कह रहा है और जिसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है. ये जो डाइवर्सिटी है कल्चरल, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, फूड चॉइसेस के बेसिस पे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर व्हाट कल्चरल डाइवर्सिटीज. और सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका जो सिचुएशन होगी, पॉवर्टी है, मार्जिनलाइजेशन है, सोशल एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेशियो, मटरनल मोर्टालिटी रेशियो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, और जो समाज के अंदर उनकी स्थान है, उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो पोजीशन है, ये सारी जो चीजें हैं और जो डाइवर्सिटी है आपस में इनमें हाई कोरिलेशन है. ये सवाल में प्रोपोजिशन है. वो कह रहे हैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करो. तो पहले हम इंट्रोडक्शन में अपने शुरुआत करेंगे और डिस्क्राइब कर देंगे व्हाट दे आर एग्जैक्टली आस्किंग. एग्जामिनर शुड बी अंडर नो illusion or confusion that you did not understand the demand of the question. जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो तुम्हारे समझ में आई है या नहीं आई है, ये इंट्रोडक्शन में दिख जाएगा. तो इंट्रोडक्शन में हम डिस्क्राइब कर देंगे कल्चरल डाइवर्सिटीज को, जो मैंने अभी नाम लिया, और इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज को, एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहे. एंड देन वी विल स्टार्ट विद यस. क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है, यू डिस्क्राइब द सिचुएशन फर्स्ट जो वो पूछ रहे हैं, उसके बाद यू विल टेक द प्रो स्टैंड कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है. सही है कि नहीं कास्ट के बेसिस पे? डोंट यू थिंक कि द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन has created a situation जहां the so-called lower caste हैं, particularly Dalits हैं, they are at what socio-economic marginalities they are suffering. चाहे वो poverty का नंबर हो, child mortality का नंबर हो, वहां पे they are there. Manual scavenging का you can cite data also. तो कास्ट जो एक डाइवर्सिटी है उसका रिलेशन है कि नहीं है मार्जिनलिटी के साथ. सेम गोज फॉर रिलीजन. Sachar committee report you will cite and say yes, the Muslims in India, they are having systematic issues. It's a diversity because we are very diverse religious wise, लेकिन socio-economic marginalities भी linked है उसके साथ. Sachar committee's report 2007 exactly says about these things. Then you will talk about the tribals. Yes,
आज तक 1947 के बाद 60 मिलियन लोग, 6 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए, जिसमें मेजोरिटी ट्राइबल्स की है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई भी पैरामीटर उठा के हम देख लें, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो एनीमिया हो, विच एवर यू थिंक, ट्राइबल्स विल डोमिनेट दैट। इनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में देख लें या फिर जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, ट्राइबल्स की ज्यादा है। रीजन वाइज अगर हम बात करें, यस, look at what is happening in northeast. It's also diversity that we are very diverse regionally. Look at what is happening in northeast. Geographical जो डिस्टेंस है मेनलैंड के साथ, जो कि अब इमोशनल भी एक लेवल पे है, इट इज देयर. You have a law and order problem in Manipur, which is ongoing since last 3 years. You have insurgencies. You have infrastructure deficit. You have substantial issues of migration from rural to urban areas in search of jobs, in search of employment. Services की जो paucity है, inefficiency है, that is well known in these areas. So that is also there. So उसके बाद हम बात कर सकते हैं जेंडर की. Yes, that is also there. Look at structural inequality the women in India are facing. पैट्रियार्कल सेटअप में रहना होता है, ग्लास सीलिंग्स हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो उन्हें नहीं मिलती, पिंक कॉलर ऑक्यूपेशंस हैं. जो स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी नर्सरी और प्री नर्सरी, यहाँ महिला टीचर्स डोमिनेट करती हैं. ये पिंक कॉलर ऑक्यूपेशन इन्हें कहा जाता है. जो रिसेप्शनिस्ट हैं, एयर होस्टेसेस हैं, यहाँ प्राइमरली महिलाएं डोमिनेट करती है और उनकी यहाँ पे वेजेस कम होते हैं. तो यू विल एग्री विद द प्रपोजिशन कि हाँ भाई यहाँ पे बात सही है. बाय द टाइम यू कंप्लीट राइटिंग ऑलमोस्ट 100 to 120 वर्ड्स यू विल बी डन अवे विद. यू विल बी डन अवे विद, हो जाएगा इतने में. लेकिन ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात है, तो वी विल लिमिट दिस आर्गुमेंट अप टू द लोअर लिमिट. 100 वर्ड्स में इसको लिखना है. इंट्रोडक्शन और ये जो मैंने यहाँ पे डाइवर्सिटीज लिखी हैं और मार्जिनलाइजेशन उनका यहाँ पे हमने स्टैब्लिश कर दिया कि भाई हिस्टोरिकली, स्ट्रक्चरली दिस इज द सिचुएशन. सेक्सुअल माइनॉरिटीज के बारे में भी हम लिख सकते थे, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, इट इज आल्सो देयर. यू कैन आल्सो राइट दैट, प्रोवाइडेड यू आर राइटिंग इन द लोअर लिमिट 100 वर्ड्स में. क्योंकि बाकी जो हम फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे कि भाई ये बात एब्सोल्युटली सही नहीं है. क्रिटिकल एग्जामिनेशन का, एनालिसिस का ये मतलब होता है. ये जो प्रिपोजिशन है, दिस इज वेरी डिटर्मिनिस्टिक एंड एब्सोल्यूट इन नेचर. कि भाई जो डाइवर्सिटीज हैं, दे आर क्लोजली अलाइंड विद सोशियो-इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज. दिस इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट. तो हम बात करेंगे कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, अगर ऐसा कोई सोचता है तो. A lot many things have changed in India since 1947. Green Revolution has came. ये जो आइडिया है कि भाई ये marginalities, they are directly linked with our diversity, this is not right. Green Revolution, more and more penetration of democracy, the emergence of dominant caste, this has led to a situation जहां पे एक मिडिल कास्ट खड़ी हो गई. दलित्स के अंदर भी एक एस्पिरेशनल कास्ट है. ओबीसीज का जो डोमिनेंस है समाज के अंदर बढ़ रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव फॉर्म्ड. तो इनको हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं. ओबीसीज के अंदर देयर आर मेनी सच डोमिनेंट कास्ट व्हिच आर रूलिंग नॉर्थ, रूलिंग फैमिलीज हैं ये नॉर्थ इंडिया में, सदर्न इंडिया में भी. दलित्स के अंदर एक एस्पिरेशनल क्लास है, एक मिडिल क्लास खड़ी हुई है. मॉडर्नाइजेशन वहां भी तेजी से हो रहा है. सो मार्जिनलाइजेशन डायरेक्टली लिंक नहीं है उनकी सिचुएशन के साथ, जो डाइवर्सिटी है. दूसरा, रीजन की अगर हम बात करें, रीजन में भी अगर आप देखें, there also it is not there. Industrialization, urbanization in the state of Tamil Nadu, the southern Indian states, it's very good, it's very massive compared to north Indian states. So region wise also the development जो है, it is reaching to these states as well. That is also opposite to what is written, the preposition. प्रिपोजिशन जब तक समझ में नहीं आएगा, ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता इसका. समझो वो क्या पूछ रहे हैं. वो कह रहे हैं जो डाइवर्सिटी है वो अलाइंड है मार्जिनलिटीज के साथ. तो रीजन में ऐसा नहीं है. रिलीजन के अंदर बात करो, सिख रिलीजन के लोग, पारसी जो इंडिया में हैं, ये माइनॉरिटीज हैं. जैन्स माइनॉरिटीज हैं. सीरियस क्रिश्चियन, जो सीरियन क्रिश्चियंस कम्युनिटी, वो माइनॉरिटी है, बट दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल when it comes to land ownership, when it comes to per capita income, literacy. You see they are doing very very well. रिलीजन के अंदर भी सिख्स, जैन्स, जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं और पारसीज, दे आर डूइंग वेरी वेल. सो
Impact of modernization, urbanization, industrialization, the throughout Indian history, Green Revolution, penetration of democracy, liberalization of the economy post 1991 and governmental efforts, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, all these efforts are making their contributions. People are being pulled out of poverty massively, and they belong to these diversities also. ट्राइबल राइट्स के बारे में बात हो रही है, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, एंड दे आर reaping the dividend. The president of India is a tribal woman. The prime minister of India is an OBC. The chief justice of India is a Dalit. You will mention all these, and then in a way you are countering this argument. ये proposition को counter अब हम कर रहे हैं, हमने counter कर दिया पूरा एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटैंटिएट करके. वी मेड द पॉइंट वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर कि वी हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द टॉपिक, वी हैव एड्रेस्ड इट एडिक्वेटली. ये प्रोपोजिशन को हमने क्रिटिसाइज कर दिया, क्रिटिकली एनालिसिस कर दिया इसका. पहले हमने डिफाइन किया, फिर प्रो लाइन ली, फिर उसको अपोज किया विद सब्सटेंस, विद एग्जांपल्स. हवा में बातें नहीं करनी, जो लिख रहे हो आर्गुमेंट उसको सब्सटैंटिएट करना, एंड वी डिड दैट एग्जैक्टली. बाय दिस टाइम you will be down with 230 or 240 words. So last one line you will use for the conclusion, and the conclusion is not always the diversities have correlation with the marginalities. State capacity has an issue, uneven economic growth has an issue, governance deficit has an issue. उसकी वजह से marginalities होती है, ना कि इस वजह से कि डाइवर्सिटी है इसलिए मार्जिनलाइज्ड है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. ये रीजन प्राइमरी रीजंस हैं. वी नीड ग्रास रूट इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट to tackle all these challenges. That's all. You described everything in 250 words. You explained it initially, you took the proposition and justified it, and then you countered the proposition with a lot of substance, and in conclusion you gave in a way a short future prospect addressing the core issue of the demand of the question. This is how you write मेंस आंसर्स. इस तरह से हम मेंस के आंसर को अप्रोच करते हैं, उसको तोड़ के डिवाइड करके आंसर को आंसर राइटिंग की जाती है. बट उसके लिए जरूरी है कि यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर पेन जो है जो चलेगा भी उसकी कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी. कंटेंट ऑफ द आंसर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द लेंथ ऑफ द आंसर. ये लिखा होता है पेपर के अंदर. क्लियर है? You can also join me on my Telegram channel. I'll meet you again when my time comes up again for this one PYQ. Thank you.